After completing intermolecular forces, we are going to start group 7. Okay, we are going to start group 7. So, group 7. Group 7. Okay, so basically, in this, we are going to study, like, first of all, the trends. Like, you can say, like how the melting and boiling point changes, and also you can say how the electronegativity changes, and how the reactivity of an element changes as we go, you can say, down the road. Okay, so group 7 may, as you can see, you have fluorine. Okay, and then you have chlorine. Okay, and then you have So what's the bromine. topic, like the main topic of this? Inorganic chemistry. Inorganic chemistry of group 7. Okay, So there's inorganic chemistry as well. bromine, and then we have iodine, and then we have astatine. So these are the elements that are in group 7. Okay, and then let's suppose this is F, this is Cl, this is Br, this is I, and this is At. Already you know that they are diatomic. They are diatomic molecules at room temperature. At room temperature, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट ही इस तरह करते हैं, सिंगल फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो आपको ये कैसे मिलेंगे? F2, Cl2, Br2, I2, At2, एस्टेटीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये आपको इसी फॉर्म में ज्यादातर नजर आएंगे। ओके, अच्छा, दूसरी बात ये कि इफ वी टॉक अबाउट देयर स्टेट्स, सो यू विल सी कि बेटा फ्लोरीन इज गैस, chlorine is gas, liquid, solid, okay, liquid, and then solid, and then solid, right? Okay, अच्छा, दूसरी बात ये कि can you tell me, like, as we go down the group, why the solidity increases? Can you tell me, as we go down the group, why the solidity increases? ऊपर वाला गैस है, फिर लिक्विड है, और फिर सॉलिड आ गया। कैन यू टेल मी व्हाट्स द रीजन? यस। हम्म। So it's because as we go down the group, atomic size increases. As we go down the group, so proton number increases, you are saying, right? Yes, sir. ओके, तो प्रोटॉन नंबर इंक्रीज होने से क्या हो रहा है बेटा? हम्म। Sir, proton number does not decrease. नहीं, you are saying that proton number increases, but why? Like, what's the relation between the proton number and the solidity? मेरा क्वेश्चन ये था कि ऊपर वाले गैसेस हैं और बीच वाले लिक्विड्स हैं, नीचे वाले सॉलिड्स हैं, तो ऐसा क्यों है? आपने कहा कि प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस, मैंने पूछा तो क्या हुआ, उससे क्या होता है? तो फिर आप क्या कहोगी? यस। हम्म।
एनी आइडिया? नो। और वो उनकी क्या कहते हैं, जैसे इंक्रीज होते हैं इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती हैं, फिर वो इनकी लंदन फोर्स भी इंक्रीज होती है। एग्जैक्टली exactly. अब आए ना पॉइंट पे। तो बेसिकली याद रखिएगा बेटा कि अगर मैं आपको कहूं कि y solidity increases, y solidity increases, so you will say that number of protons increases, means that the number of electron increases. Okay, so when the number of electron increases, so the London force increases. Okay, so the London force increases, mean that intermolecular force of attraction increases. Like I mean to say, बेटा इसको मैं थोड़ा सा और अगर exaggerate करूं, तो this is fluorine, this is bromine, this is iodine. अब गौर से सुनिएगा जरा। ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ना, दिस इज द लंदन फोर्स। Kind of intermolecular force of attraction. Okay, so it's going to increase. Okay, because the number of electron increases. तो आयोडीन में ये force of attraction ज्यादा है। तो आयोडीन में जब force of attraction ज्यादा है तो बेटा इनके molecules को separate करना just like that मुश्किल है ना। मुश्किल है ना यार इनको सेपरेट करना। आप अगर बोलोगे सर क्यों, तो बेटा फिर मैं बोलूंगा कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है, ऑब्वियस सी बात है। तो याद रखिएगा, जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होती है, उन चीजों को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। अब फ्लोरीन में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको सेपरेट कर सकते हो, बड़ी आसानी के साथ इसे आप सेपरेट कर सकते हो। बात समझ आ रही है? तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि तभी तो हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स को पहले पढ़ाते हैं, वरना तो यही समझ नहीं आएगा। आप तो फिर मुझे इसी में ही लगा दोगे कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो बड़ा डिटेल्ड डिस्कशन होता है हमारा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर। तो इसलिए अब बड़ा क्लियर आइडिया है आपको, मुझे फर्दर एक्सप्लेन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भाई मेरे कहने का क्या मतलब है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई फ्लोरीन में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कम है, तो क्लोरीन में ज्यादा है, तो ब्रोमीन में उससे भी ज्यादा है, तो आयोडीन में उससे भी ज्यादा है। इस वजह से फ्लोरीन इज गैस, क्लोरीन इज लिक्विड एंड आयोडीन इज सॉलिड। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। तो इसलिए दिस इज द रीजन कि आपकी सॉलिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सॉलिडिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ओके, तो ये याद रखिएगा। अच्छा, फिर हम आते हैं बेटा किस पर, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स पर। Sir, मेल्टिंग could you send me your email? पॉइंट बता रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, तो Okay, sir. पहले तो आप मुझे आइडिया दो कि मेल्टिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक, कम होना चाहिए
ये ज्यादा होना चाहिए। यस। हम्म। ज्यादा। ज्यादा। क्यों? वजह? 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 यस। हम्म। वही ना, इंटरमोलिकुलर फोर्स इंक्रीज होती है। अच्छा, जब हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं, लाइक ऑब्वियसली मैं इसी की बात कर रहा हूँ, हैलोजेंस की, तो कौन सा बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है? लाइक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है, या मतलब कुछ और, कोई और बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा होता है? क्या कहते हो? लाइक कहने का मतलब ये है कि जब कोई चीज मेल्ट होगी तो ये यहाँ से टूटेगा ना? क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी। सही कह रहा हूँ मैं? हम्म। मैं गलत कह रहा हूँ? क्यों? कि भाई मेरे कोवेलेंट बॉन्ड नहीं टूटता है। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मेल्टिंग में, बॉइलिंग में, भाई मैं अगर आपसे पूछूं बेटा मेरे पास वाटर है एंड दिस इज लिक्विड, मैंने उसे हीट किया, तो क्या मुझे ये मिलेगा? एम आई राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? यस और नो? हम्म। इज दैट करेक्ट? हम्म। Let's suppose I'm going to heat water. I'm going to heat water that is in the form of liquid. So I would be getting hydrogen gas and oxygen gas. Am I right? Yes, sir. No, जी। wait, heating No, water? Heating this water, is so it's wrong. like just water vapor. Exactly. Beta, water will remain water, but it would be converting in vapors. Like it would be in the form of gas. So basically, तो आपने जब वाटर को हीट किया तो भाई कौन सी अट्रैक्शन ओवरकम हो गई? कौन सी अट्रैक्शन ओवरकम हो गई? तो मैं बोलूंगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ओवरकम होती है। हमेशा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओवरकम होती है। तो जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं या बॉयल करते हैं, तो याद रखना, कोवेलेंट की बेसिस पे हम बात नहीं करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड की बेसिस पे बात नहीं करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड को अपना बेस नहीं बनाएंगे। we always we always look at intermolecular forces of attraction. So if intermolecular forces of attractions are higher, if intermolecular forces of attractions are higher, so it's mean that more energy would be required, more energy would be required to melt, or you can say or boil. ओके अगर लेस इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसका मतलब ये है कि उसको मेल्ट करना भी आसान है और उसको बॉयल करना भी आसान है। असल है ये चीज। तो हर बात को हम रिलेट करवाएंगे किससे? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो बेटा याद रखिएगा, एज वी गो डाउन द ग्रुप, सो as we go from top to bottom, so the melting point increases. So the melting point increases. Okay. तो फिर आप फर्दर इसको एक्सप्लेन करना कि भाई मेल्टिंग पॉइंट इसका क्यों इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि बेटा ऑब्वियस सी बात है, इसको फर्दर अगर मैं एग्जैजरेट करूं, एक्सप्लेन करूं, तो आई वुड बी सेइंग दैट कि मेल्टिंग पॉइंट की वजह से, यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से, यानी कि लंदन फोर्स की वजह से, और लंदन फोर्स क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेंथ ऑफ वेंडरवॉल फोर्स इंक्रीज हो रहा है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मोर एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू मेल्ट और बॉयल। क्यों? कि मोर एनर्जी मींस कि यू हैव टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब अट्रैक्शन ही इतनी स्ट्रॉन्गर होगी तो उसको ओवरकम करना कोई इतनी आसान बात थोड़ी है। ओवरकम करना इतनी आसान बात थोड़ी है। मोर एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड।
हाँ, अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, जैसे कि क्लोरीन के केस में है, तो ओके, उसको बॉयल करना भी आसान है, उसको मेल्ट करना भी कह सकते हो कि आसान है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे आते जा रहे हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लंदन फोर्स बढ़ती जा रही है। यही रीजन है कि उसको मेल्ट करना क्या होता जा रहा है, मुश्किल होता जा रहा है। तो अगर मैं इसकी डायग्राम यूं बनाऊं, जरा देखिएगा कि लेट्स सपोज दीज आर आयोडीन मॉलिक्यूल्स। ओके, तो बेसिकली ये जो आपके पास आईएमएफ है, यानी कि इसको मुझे कहना चाहिए लंदन फोर्स है। दिस लंदन force is stronger. This London force is stronger. London force stronger है, obvious सी बात है, because the number of electrons are higher. Okay, obviously पहले मैंने आपको बता दिया है. So more energy needed to overcome London force. इसलिए इसलिए hence melting point is higher for iodine. Melting point is higher for iodine as compared to chlorine, as compared to bromine, as compared to fluorine. It's all depend on the number of electrons. तो ये melting point का एक trend set हो गया कि as you are going down the group, so the melting point is going to increase. Not only the melting point, but also the boiling point is going to increase. तो बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स पे ये सब कुछ क्या हो रहा है, डिपेंड कर रहा है। ओके, तो मेल्टिंग पॉइंट खास आप लोगों को याद रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, किसी भी चीज की सॉलिडिटी हो गई, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड कर रहा होता है। ओके, हो गया जी, आगे। अब आइए जरा आप किस पर, इनकी रिएक्टिविटी पर, किस पर आएंगे, इनकी रिएक्टिविटी पर। ओके, सो रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 7, रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 7। अच्छा, लेकिन अ, तो मेटल की रिएक्टिविटी का अंदाजा कैसे लगाते हैं हम कि वो कितना इजीली इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर रहा है। अगर इजीली लूज करेगा तो मोर रिएक्टिव, और अगर इजीली लूज नहीं करेगा तो लेस रिएक्टिव मेटल होगा। यानी कि लिथियम और पोटासियम की अगर मैं बात करूं, इनकी रिएक्टिविटी को मैं कंपेयर करवाऊं, तो लिथियम बेचारा छोटा सा है, इसका प्रोटॉन नंबर 3 है, और पोटासियम जो है वो थोड़ा बड़ा एलिमेंट है, उसका प्रोटॉन नंबर 19 है। ओके, तो 19 का जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो जाहिर बात है उसमें 3 शेल्स होंगे, और जब लिथियम का आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो उसमें टोटल 2 शेल्स होंगे। तो लिथियम का स्ट्रक्चर छोटा हो गया, फ्रैक्शन ज्यादा हो गई, लूज करना मुश्किल हो गया। पोटासियम की अगर आप बात करोगे तो उसमें 3 शेल्स हो गए, 3 शेल्स का मतलब स्ट्रक्चर बड़ा हो गया, स्ट्रक्चर बड़े होने का मतलब उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया। जब ये न्यूक्लियस से दूर हो गया तो वो लूजली अट्रैक्टेड हो गया, जब वो लूजली अट्रैक्टेड हो गया तो आई कैन से दैट पोटेशियम कैन लूज इट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। सो पोटेशियम इज अ मोर रिएक्टिव मेटल, लिथियम इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, क्योंकि लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज नहीं करेगा। तो एक आइडिया है ताकि आप समझ सको कि जब हम नॉन मेटल की रिएक्टिविटी को डिस्कस करने जा रहे हैं
जब हम नॉन मेटल की रिएक्टिविटी को डिस्कस करने जा रहे हैं तो नाउ इट्स गोइंग टू गेन इलेक्ट्रॉन. रिमेंबर सो रिएक्टिविटी. रिएक्टिविटी. तो रिएक्टिविटी अगर हम बात करें ग्रुप 7 की, एज दे ऑल आर नॉन मेटल्स, सो जो नॉन मेटल होता है ना, all non-metal gains electron. Okay, gains electron. अगर they gain electron easily, they gain electron easily. Okay, if they gain electron easily, तो मैं कहूंगा कि they are more reactive non-metal. They are more reactive non-metal. Okay. और अगर तो मैं क्या कहूंगा कि वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है. कि वो क्या है? लेस रिएक्टिव नॉन मेटल है. तो ये आपको पता होना चाहिए. ओके, सो इट्स लाइक यू कैन से कि कितना इजीली वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो बेसिकली ये डिपेंड उस पर कर रहा है. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटा मेरे पास क्लोरीन भी है और मेरे पास ब्रोमीन भी है, ओके, और आपको अच्छी तरह से पता है बेटा कि क्लोरीन इज इन पीरियड 3. क्लोरीन इज इन पीरियड 3. Chlorine is in period 3. So if I'm going to draw the structure of chlorine, so this is the nucleus of chlorine, and this is the first shell of chlorine, and this is the second shell of chlorine, and this is the third shell of chlorine. Okay, तो आपको पता है कि क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ग्रुप 7 का मेंबर है ना ये. मैंने क्लोरीन का स्ट्रक्चर Yes, बनाया. sir. अच्छा, जब मैं ब्रोमीन का स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना कुछ इस तरह से, तो बेटा ब्रोमीन के स्ट्रक्चर, चूंकि ब्रोमीन इज इन पीरियड 4, तो पीरियड 4 का मतलब आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 4 शेल्स बनेंगे. तो पीरियड इज गोइंग टू टेल यू द नंबर ऑफ शेल्स. पीरियड नंबर इज गोइंग टू टेल यू द नंबर ऑफ शेल्स. तो मैंने 4 शेल बना दिए, सिंपल. तो अब इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जस्ट लाइक दैट. अब आप गौर से देखो, नोट करो बेटा, इसका जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, टॉकिंग अबाउट ब्रोमीन, तो अच्छा फॉर सिंप्लिसिटी मैं बीच वाले शेल्स को रिमूव कर रहा हूँ. फॉर सिंप्लिसिटी बीच वाले शेल्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ. एंड आई वांट टू से दैट कि ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड रेडियस. दिस रेडियस इज इक्वल टू 0.45 nanometer. And if I talk about this radius, okay, so this is 0.1 nanometer. मतलब आप देख रहे हैं ना कि कितना रेडियस का डिफरेंस आ गया. तो आई कैन से दैट बेटा स्मॉलर साइज, हायर अट्रैक्शन towards electron, higher attraction towards electron. Okay, so chlorine will gain electron easily. Chlorine will gain electron easily. Okay,
chlorine will gain electron easily. And if you talk about like bromine, it's larger in size. Okay, it's larger in size, so lower attraction. Okay, lower attraction towards coming electron. Like, I mean to say that weaker pull. It's not going to gain electron easily, right? Yes. Bromine will not gain electron easily. Bromine will not gain electron easily. So I can say that K chlorine is more reactive than bromine. Chlorine is more reactive than bromine. तो अगर मैं आपसे पूछूं, हाँ भाई आयोडीन की रिएक्टिविटी क्या होगी, तो आप सोचोगे कि यार आयोडीन का साइज क्या होगा। मैं आपको कहूंगा यार आयोडीन जो है ना वो 5th पीरियड में होता है, मतलब कि 5 शेल्स, मतलब कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर। हाँ, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है उसका, तो इसका मतलब क्या है, आयोडीन तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, आयोडीन तो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। जब आयोडीन इजीली इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो मैं क्या कहूंगा, आयोडीन इज लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। तो मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ भाई क्या समराइज किया आप लोगों ने, क्या कहते हो फिर, तो आप लोग कहोगे सर एज वी गो डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम, तो बताओ रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यस, व्हाट डू यू थिंक, लाइक इंक्रीज और Decrease. डिक्रीज। सॉरी, Decrease. decrease होगी, As we exactly. Good. So from top to bottom, okay, so the reactivity of group 7 decreases from top to bottom, from top to bottom. ओके, तो ये है रिएक्टिविटी का ट्रेंड। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको बता दिया है।